Good morning, class 10th. Hope you will be fine and takes a lot of enjoy our offline as well as online classes. Those students who are in the class, but those who are absent today, so I am introducing a new chapter, magnetic effects of electric current. This is our second video, and before this we have completed magnetic fields, magnetic field lines and the characteristics of magnetic field lines. Today I am going to start magnetic effects of current, or also known as Oersted experiment. ठीक है जी, देखिए जी, suppose that we have a magnet, clear, or if there is a current flowing in the direction, ठीक है, in the direction of the magnetic field around it, that is called magnetic effects of current, magnetic effects of electric current. You may write down also, a current flowing in a wire produces a magnetic field around it. Magnetic field around it. This is called the magnetic field of electric current. Magnetic effect of electric current. And the importance of magnetic effect of current lies in the fact that it gives rise to the mechanical force and various electric equipments utilize the magnetic effect of current. And H.C. Oersted was the first person who discovered the magnetic needle north south and S. The north pole of the needle gets deflected on holding the same wire below the needle. Deflection of the needle is reversed. ये हो गई आपकी मैग्नेटिक नीडल. इसके अंदर देयर इज ए टू पोल, देयर इज ए रेड पेंटेड एरिया दैट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, ठीक है, एंड वेयर एज दिस वन इज द साउथ पोल. तो एच.सी. ऑस्टेड ने रिमार्केबली एक्सपेरिमेंट को
क्या किया, कवर अप किया और बताया कि अगर हम क्या करते हैं, ये क्या है, एक करंट कैरिंग वायर है, अगर हम क्या लेकर के आते हैं, मैग्नेट लेकर के आते हैं, तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या कर रही है, डिफ्लेक्ट करता है। जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो यहाँ क्या पैदा होगा, डिफ्लेक्शन पैदा होगा। अब यदि इस वायर को हम क्या ले आए, इसके नीचे ले आए, ठीक है, तो जो इसकी डायरेक्शन होती है वो क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है। डायरेक्शन है दैट विल बी चेंज, क्लियर। एंड द रिवर्स लिखा है ना आपने, मैग्नेटिक नीडल इज रिवर्स। क्या होता है यहाँ पर, जैसे आप क्या करें कि एक कॉपर वायर में मोटा टुकड़ा और मैग्नेट को, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट दो एंड से जोड़ करके इलेक्ट्रिक करंट क्या करें, उसके अंदर फ्लो करें, और वहां एक मैग्नेटिक निडल लेकर के आए, तो उसके अंदर क्या होगा, डिफ्लेक्शन पैदा होगा। डिफ्लेक्शन का मतलब होता है वो क्या होते हैं, एंड्स उसके क्या हो जाते हैं, दूर हटते हैं, विक्षेपित होते हैं, क्लियर। एंड द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन, जो उसकी डायरेक्शन है डिफ्लेक्शन की, राइट डाउन द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन of compass needle in the magnetic field of the compass needle in the magnetic field produced due to a current carrying wire may be determined by using Ampere's rule, by using Ampere's rule, ठीक है। डिफ्लेक्शन हो रहा है, हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग वायर हम इसके पास लेकर के आए, मैग्नेटिक कंपास है, मैग्नेटिक निडल है, इसके अंदर डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उसकी जो डायरेक्शन है उसका पता हम किससे लगाते हैं, एम्पियर्स रूल से। तो व्हाट इज एम्पियर रूल्स, अकॉर्डिंग विच स्टेट्स दैट, एम्पियर्स रूल स्टेट्स दैट, ठीक है, एम्पियर्स रूल स्टेट्स दैट इमेजिन ए मैन, एम्पियर्स और लिख लेना बेटा स्विमिंग रूल, दैट इज एम्पियर्स swimming rule. Imagine a man swimming along the conductor in the direction of current, comma, facing a magnetic compass kept near and below, the conductor. Then the north pole of the needle will be deflected towards his left hand. That is towards its left hand. That is the Ampere swimming rule. So next we will discuss about the magnetic field due to a straight carrying current conductor. The magnetic field lines around a straight conductor carrying current are concentric circle on plane and perpendicular to the direction of the current. ये क्या है? A current XY is the straight current carrying conductor wire. ठीक है? This one is the wire. यदि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? That is battery. As you know that the combination of cell is called battery. ये प्लग की
K लगा हुआ है, and the variable resistance, that is variable resistance, that is also known as rheostat, and this one is the ampere meter for measuring the current. तो जैसे ही प्लग की को आप ऑन करेंगे या प्लग की को लगाएंगे तो यहां से क्या होगा, करंट फ्लो करेगी। जैसे ही करंट फ्लो करती है तो यहां पर ये क्या है, दिस वन इज द कार्डबोर्ड, ठीक है, ये कार्डबोर्ड है और इसके अंदर क्या जाएंगे, यहाँ पर सर्किल, कंसेंट्रिक सर्किल, कंसेंट्रिक रिंग्स, जो हमने यहाँ पर क्या डाला हुआ है, यहाँ क्या लेते हैं, आयरन का पाउडर, आयरन का बुरादा लेते हैं उसको। तो जैसे ही करंट इसके अंदर फ्लो करेगा तो किसके कारण से, मैग्नेटिक फील्ड के कारण से, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस होगा उसके कारण से ये जो रिंग्स होते हैं, रिंग्स ये क्या बना लेंगे, ये कंसेंट्रिक सर्किल बना लेंगे, ठीक है। यहाँ इसके अंदर हमने ये एक्सप्लेन किया है, जिसकी जो डायरेक्शन है यहाँ स्टडी करेंगे किस किस का, ठीक है। इसके अंदर इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नीट्यूड के लिए यहाँ क्या बनेगा, एक फॉर्मूला बनेगा, और डायरेक्शन के लिए भी हम डायरेक्शन किससे निकालेंगे, यहाँ डायरेक्शन के लिए जो डायरेक्शन है किसकी, इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसा है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड और थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज द पहला ए के अंदर आ जाएगा आपका, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय लेफ्ट नहीं, राइट हैंड थंब रूल आएगा फर्स्ट, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट नहीं है, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है जी, राइट हैंड थंब रूल। सो व्हाट इज द राइट हैंड थंब रूल, हेडिंग लेंगे राइट हैंड थंब रूल। तो डायरेक्शन का पता लगाने के लिए हमने क्या लिया था, राइट हैंड थंब रूल। It states that suppose you have a current carrying conductor or a wire in your right hand, आपने राइट हैंड के अंदर एक वायर को पकड़ा हुआ है, तो जो ये थंब है ये क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ द करंट, एंड द कर्लिंग फिंगर्स, these curling fingers indicates the direction of the magnetic field according to this law. Now second one is the magnitude, इसका magnitude क्या होगा, magnitude of magnetic field, magnitude of magnetic field, ठीक है, at a point due to a long straight current carrying wire, that is due to a long straight current carrying wire is directly proportional to the number one current, इसके द्वारा current passing through the wire, and the second one, current passing through the wire means क्या लिख सकते हैं, you can write as V is directly proportional to the I. This one is the first equation, and the second one is reciprocal of the ठीक है जी, magnitude of magnetic field reciprocal of the perpendicular distance, reciprocal of
the perpendicular distance of that point from the wire means you can write as V is inversely proportional to 1 upon R. This one is your second equation. ठीक है, आगे क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे. On combining first and second, we get V is directly proportional to I and inversely proportional to R. V is directly proportional to I and inversely proportional to R. और this one is the sign of proportionality. ठीक है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव कर देंगे तो आपका आ जाएगा B is equal to म्यू 0 अपॉन 2 पाई और इंटू I अपॉन R. By this formula we can calculate the magnitude of magnetic field. पहले में आ गया आपका डायरेक्शन, सेकंड के अंदर आ गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, वेयर इस फॉर्मूले के अंदर जो आ रहा है B is equal to म्यू 0 अपॉन 2 पाई इंटू I अपॉन R. सो यू मे नोट डाउन दैट म्यू 0 अपॉन 2 पाई, this is the permeability of the free space. Permeability of the free space. So this one is the magnetic field due to a current carrying straight conductor. Magnetic field यानी एक स्ट्रेट सीधा धारावाही चालक तार है, सीधे तार के अंदर हमने क्या पता लगाया, उसके डायरेक्शन का, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे हम फाइंड आउट करेंगे. ठीक है जी, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी. डायरेक्शन के लिए हमने क्या पढ़ा, राइट हैंड थंब रूल. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल. अब सर्कुलर कॉइल के अंदर कैसे इन दोनों चीजों को हम